A very healthy morning, all of you. How are you all? I hope you all are taking good care of yourself. So, class 6, I'm just going to start a chapter from the history. Before I'm starting this chapter, I just want to talk with you some few points. The first point is, beta, this is your new term, and it is very important to complete your work on time. So you can make a new notebook of history. आप हिस्ट्री एंड सिविक्स का काम एक नोटबुक में करेंगे. ओके, दैट वुड बी अ हिंदी नोटबुक. और जोग्राफ़ी के लिए आप एक अलग नोटबुक लेंगे. ओके, सो टोटल आपको सोशल साइंस की 2 नोटबुक्स बनानी है. ओके, द फर्स्ट जिसमें आप हिस्ट्री और सिविक्स करेंगे एंड जोग्राफ़ी के लिए आप अलग नोटबुक रखेंगे. गॉट इट बच्चे? एंड again I'm saying you can just cover your notebook with the blue cover, dark blue चार्ट पेपर. आपको डार्क ब्लू चार्ट पेपर से अपनी कॉपीज़ को कवर करना है. सो नाउ वी कैन स्टार्ट दिस चैप्टर. बिफोर यू कैन आस्क एनी क्वेरी, किसी भी क्वेरी को बेटा पूछने से पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू वॉच फुल वीडियो एटलीस्ट 3 टाइम्स. 3 टाइम कम से कम आपने वीडियो को देखना है, रीड करना है PDF और बुक में से रीड करना है एंड आस्क इन अ क्वेरी टाइम इफ़ यू हैव एनी क्वेरी. इफ़ यू प्रॉब्लम इन अ पर्टिकुलर वर्ड, अगर आपको किसी पर्टिकुलर वर्ड में प्रॉब्लम है, सो यू कैन जस्ट सी ऑन ये डिक्शनरी. आप डिक्शनरी में देख सकते हैं. इफ़ यू डोंट हैव एनी डिक्शनरी तो जस्ट टाइप ऑन अ गूगल कि व्हाट इज़ दैट मीनिंग ऑफ for example, what is that meaning of history? So there is a written कि history का मतलब क्या होता है. So now start this chapter, the chapter number 5 of history. What is the name of this chapter? Tell me. The Vedic period. What is the name of the chapter? Repeat after me. The Vedic period. So beta, in this chapter we have just learning objects are the Aryans and the spread in India, the Vedas, वेद के बारे में आपने सुना होगा. Life of a people means the people on the Vedic age, how the people has a life, like the political status, social life, food and drink, economic life, entertainment, religious aspect of life, the 4 phases of life. इनाम गाँव इज़ अ विलेज नेम. ओके, गांव से आपको लग रहा होगा ना, इनाम गांव इज़ अ विलेज. चारकोलिथिक सेटलमेंट इन अ डेक्कन रीजन, द बोरियल्स एंड मेगालिथ. सो बेटा, इन अ प्रीवियस चैप्टर यू हैव जस्ट स्टडी अबाउट द सिविलाइजेशन. कौन सी सिविलाइजेशन के बारे में हमने पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर में? यस, द इंडस वैली सिविलाइजेशन. व्हाट इज दैट ना इन civilization? Indus Valley civilization. And have you know about it कि how they can be adapted and कैसे उसका अंत हुआ? Then you have just noticed that the study of historians was based on identify artifacts. Okay, we have to, how can we sure that कि कैसे हमें पता चला कि इंडस वाली सिविलाइजेशन में हमें चीज़ें मिली. दैट वॉज द आर्टिफैक्ट्स. एंड आर्टिफैक्ट एज अ स्टडी पॉसिबल वे टू पीपल, हाउ दे लिव्ड, हाउ दे वर्क, हाउ दे एजेस, how they use the tools. So finding of these time closure, now we have just study along the all the analysis, and human remains, the cultural remains as a deeper and clearer picture of those time. So beta, in this chapter means in the Vedic period chapter, in this chapter we also shall study about the social aspect and revealed by the such analysis. Okay, so beta, Indus Valley civilization come to end about 1900 BCE. 1900 BCE, and they had from the some script during this time of seals. Seals beta basically क्या है? हैव यू नो अबाउट द स्टैम्प? आज की डेट में हम लोग जो स्टैम्प बोलते हैं, स्टैम्प क्या करता है? पर्टिकुलर चीज़ को छपाई करता है. सो बेसिकली दैट स्टैम्प इज़ अ
seals is just like a stamp also. The next set evidence we have got better most of evidence, and this period of Vedic period 1200 to 800 BCE. This period is called a Vedic period. 1200 to 800 BCE, it is called a Vedic period. It gets the name from the Vedas. आपने वेद के नाम सुने होंगे. कहाँ से इसको नेम मिला? वेदा से. द वेदास डिस्क्राइब द पीरियड ऑफ ग्रेट डिटेल. अच्छा, हाउ मैनी वेद्स? टेल मी दैट. आपको पता होना चाहिए हाउ मैनी वेद्स वी हैव. सो इसके बारे में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि कितने वेद्स हैं. एंड आई नो बहुत सारे बच्चों को इनका पता भी होगा कि हाउ मैनी वेद्स. येस बेटा, वी हैव 4 मेन वेदास. Okay, and in that Vedas we have a great detail about a life, about that time of people, how they are doing his life, how they are spending his life. We shall study more about Vedas and revelation slightly later in this chapter. The Aryans and the spread. The Aryans, beta, tell me who was the Aryans. The people of the period are believed they have come from Central Asia. बेटा, the people who are living in that era, जो लोग इस पीरियड में रह रहे थे, वो बिलीव करते थे कि उनके एंसेस्टर्स मतलब उनके पूर्वज. वेयर दे कम फ्रॉम? दे कम फ्रॉम सेंट्रल एशिया. एशिया इज़ अ कॉन्टिनेंट, एंड येस, एशिया इज़ अ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट in the world. And the people who can come from Central Asia, they came across the Hindu Kush ranges in the plain of Indus Valley, and the early part of this period flourished in the region of Punjab, including the area now Pakistan and part of Afghanistan, gradually spread into the region of Ganga Basin. And the people who lived in this area, बेटा in this area का मतलब है the people who are lived in presently in Punjab, but later on that is a Pakistan, but previous on there is a Pakistan or Afghanistan part. The people who are living in Ganga Basin, जो लोग गंगा बेसिन के नियर बाय रहते थे, the people who lived in this region is called themselves Aryans. क्या कहते थे वो अपने आप को? Aryans. Now you know about it कि who is the Aryans? The people who are living in Central Asia and the people who are living in the Ganga Basin river, say they people called his, क्या कहते थे? Aryans. Got it बच्चे? बेटा, again I am saying it is very important to watch full video. आप जब तक पूरी वीडियो नहीं देखेंगे आपको चैप्टर नहीं समझ आएगा. ओके? Basically, beta, historians believe that Aryans were nomadic group. What is that nomadic group? आप लोगों ने पढ़ा हुआ है. The people who are not having a settled life. Nomadic people कैसे होते हैं? जो आज यहाँ तो कुछ महीनों बाद कहीं और, फिर कुछ महीनों बाद कहीं और. दे डोंट हैव अ सेटल्ड होम. जैसे आपका तो एक घर है, आप स्कूल जाते हैं, मार्केट जाते हैं, रिलेटिव्स के यहाँ जाते हैं, तो आफ्टर सम टाइम बाद अपने घर आ जाते हैं. बट दोज हु आर लिविंग इन द नोमैडिक ग्रुप, दे डोंट हैव अ परमानेंट हाउस. दे कैन मूव वन प्लेस टू अनदर. The Aryans were nomadic group and people who originally lived in Central Asia, and some of them migrated. अच्छा, what is that meaning of migrated? Migrated means होता है moving out from one place to another. Migrate होना. Okay? Migrate to other parts in the world. बेटा, historians जो जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी है, they thought that कि the Aryans have a nomadic group. Sometime they are living in Central Asia, sometime they are migrated in the other parts of the world, in the west of India, in the Europe respectively. The cause of last cell migration, however, is not known. और किसी को ये नहीं पता कि किस तरीके से पूरे वर्ल्ड में लोग अलग अलग जगहों पर फैले. So basically, beta, do you know
डू यू नो दैट? बेटा हैव यू नो अबाउट इट कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जब हम पढ़ रहे थे, हड़प्पन सिविलाइजेशन, वी हैव नो रेफरेंस ऑफ हॉर्सेस. उस समय पर हमें कोई रेफरेंसेस नहीं मिला हॉर्सेस का. वी कॉल्ड इट हॉर्सो एज अ अश्व. हिंदी में, हिंदी एंड संस्कृत में हम हॉर्सेस को क्या कहते हैं? अश्व. ओके, बट इन दिस वैदिक पीरियड वी हैव लॉट ऑफ प्रूफ ऑफ अ कार्ट. कार्ट मतलब रथ, ठीक है, यानी कि घोड़ा गाड़ी के हमें बहुत सारे प्रूफ मिले हैं, रथ के प्रूफ मिले हैं. सो हम कह सकते हैं कि ऑन दैट वैदिक पीरियड पीपल यूज टू रथ एंड पीपल ड्राइव टू कार्ट्स. ओके, so in this theory of migration gets supported to large extent from similarity in the spoken language. बेटा इसी थ्योरी से हमें पता चलता है, लाइक आई एम एन अमीशा, आई एम लिविंग इन दिल्ली, आई एम स्पोकन इन अ हिंदी खड़ी बोली और देवनागरी लिपि में बोलती हूँ, बट इफ़ आई एम गोइंग इन इटली सो आई एम ऑल्सो स्पोकन दैट हिंदी लैंग्वेज ओनली. सो ऐसे ही धीरे धीरे सेंट्रल एशिया से पीपल आर मूविंग अराउंड इन द वर्ल्ड एंड just spoken a language of their aspect as well. And I'm just also we are also their customs across the widespread region. There are references of existence of 7 river और सप्त सिंधु. हमें वेदों के अंदर ही बेटा सप्त सिंधु, सप्त मतलब 7, ओके, एंड सिंधु मीन्स रिवर. ओके, 7 रिवर्स के बारे में भी हमें वेदा में ही पढ़ने को मिला है. The 7 tributaries of Indus River following in the northwest in undivided India. बेटा इट इज़ थोड़ा सा टिपिकल है. सप्त सिंधु, सप्त सिंधु मीन्स एक ही रिवर है, उसकी 7 शाखाएं, 7 ब्रांचेस निकल रही हैं, ट्रिब्यूटरीज निकल रही हैं. इसी के बारे में वेदा में भी लिखा हुआ है, दैट इज सप्त सिंधु. क्या कहते हैं इसे? रिपीट आफ्टर मी, सप्त सिंधु. नाउ the common words of language of these people used to in some European language convenience and historians socialists that Aryan did come to India from Central Asia. बेटा हमारे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो यूरोपियन लैंग्वेजेस में भी हिंदी से सिमिलर हैं, उन्हीं से निकलकर वो वर्ड्स बने हैं. लाइक इन, हैव यू सीन दिस टेबल? आपको ये टेबल दिख रहा है बेटा? इन अ वैदिक पीरियड पितृ, जर्मन में वेटर, इंग्लिश में फादर. पितृ मीन्स फादर एंड इन पर्शियन दैट इज पिदार. ओके, मातृ, हम लोग मदर को क्या कहते हैं? मातृ. जर्मन में मदर, इंग्लिश में मदर एंड पर्शियन में मदर. ओके, वैदिक पीरियड भातृ मीन्स ब्रदर एंड ब्रदर. अष्ट मीन्स अष्ट यानी 8. ठीक है, सो मोस्ट ऑफ द वर्ड्स इन अदर लैंग्वेजेस हैज़ कम फ्रॉम द वैदिक पीरियड. यानी कि वैदिक लैंग्वेज से ही ये सारी लैंग्वेजेस निकली हैं. गॉट इट? वैदिक लैंग्वेज से ही ये सारी लैंग्वेजेस निकली हैं, जैसा कि आपको टेबल में दिख रहा होगा. नाउ डू यू नो various languages have been claimed together a family. बेटा बेसिकली वी हैव जस्ट अ मेन 22 लैंग्वेजेस. इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. द फर्स्ट 2 फैमिलीज़ में डिवाइड किया है. द फैमिलीज़ ऑफ इंडो यूरोपियन लैंग्वेज इंक्लूडिंग इंग्लिश, जर्मन, ग्रीक, स्पेनिश, संस्कृत, हिंदी, कश्मीरी एंड गुजराती. Basically this is called a Indo-European language. What is called? Indo-European language. कौन कौन सी है? English, just speak after me. English, German, Greek, Spanish, Sanskrit, Hindi, Kashmiri and Gujarati. So this is called Indo-European language. So the another one is Dravidian family. Dravidian family languages कौन सी हैं? तमिल, तेलुगु, मलयालम एंड कन्नड़. तमिल, तेलुगु,
Malayalam and Kannada. Beta, we have various languages. We have just divided into two families. The first one is Indo-European languages, which comes under the English, German, Greek, Spanish, Sanskrit, Hindi, Kashmiri and Gujarati. The another one is Dravidian. Dravid मतलब दक्षिण का, South languages. The Dravidian family of languages include Tamil, Telugu, Malayalam and Kannada. We are just take class here only beta. It is दिस कीवर्ड्स यू कैन डू इन योर नोटबुक. आपको डेट डाल के, आज की डेट डाल के, चैप्टर का नेम एंड नंबर डाल के आपको ये कीवर्ड्स लिखने हैं बेटा. योर राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन. ओनली यूज 2 पेन, वन ऑफ ब्लैक पेन एंड वन ऑफ ब्लू पेन. वर्ड आप ब्लैक पेन से लिखेंगे, उसके मीनिंग आप ब्लू पेन से लिखेंगे बेटा. अगेन नो बडी विल यूज़ द फ्लूड. आप लोग फ्लूड यूज़ नहीं करेंगे. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम. अपना काम टाइम पे कंप्लीट करेंगे. गॉट इट बच्चे? थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स.